Assalamu alaikum. Hello guys, welcome you again in our YouTube channel. So this is Danish Shabir. So today I am going to discuss very important topic that is factors affecting transpiration. So this will be the continuation talk. This is the continuation topic of previous topic as we have made in the previous time. The topics videos regarding transpiration, and this will be the lecture third of transpiration. So last time types of transpiration हमने discuss किए, उसमें कुछ pending सा रह गया है last month, so that I am going to discuss here. So लेकिन today मैं आज का जो लेक्चर थर्ड में यहाँ पे जो कहने जा रहा हूँ that will be the factors affecting transpiration. So before I am starting factors affecting transpiration, so first I will explain the third type of transpiration which we remain pending in the previous time. So as we have made in the previous time lectures about transpiration, we know that about what is transpiration phenomena, how it occurs, and which part includes through which transpiration occurs. So let me start the third type of transpiration, that was cytometal transpiration. Cytometal transpiration. As you know, you are all aware about the transpiration is a phenomena which occurs by the plants through which lots of water lost to the environment in the form of vapors. The water which is absorbed by the plant through the specialized system, that is vascular system, conductive system. The water which is absorbed from the from the soil, from the which is the source through which the plant absorbs via roots up to the plant cells. That should be removed. Otherwise it becomes harmful. It becomes we can say toxic for the plants if excess water gets deposited within the plant body. So let me discuss to be briefly about cytometal transpiration. So cytometal transpiration is a third type of transpiration which is favorite and most favorite type of transpiration, through which maximum amount of water which is absorbed by the plants through the roots, through the vascular system, that is xylem, that is xylem system, xylem tissues, so xylem cells. Cytometal transpiration is the most favorite type of transpiration through which maximum amount of water which is absorbed lost to the environment, to the surroundings. So cytometal transpiration is nothing, it is the loss of water vapor. It is the loss of water vapor to the environment through specialized pores. ये स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं जिनका हम कहते हैं स्टोमेटा. स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं जो बने हुए स्पेशलाइज्ड सेल्स से, जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स. सो गार्ड सेल्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जो कि बनाते हैं स्टोमेटा. अगर हम यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रफली आपको दिखाऊं, सो गार्ड सेल्स ये किडनी शेप्ड होते हैं, इस तरह होते हैं गार्ड सेल्स. सो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट वेहिकल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पिगमेंट्स होते हैं. सो दीज आर गार्ड सेल्स होते हैं. सो ये है, दिस इज cytometal pore. This is guard cells, it is nothing. So ये cytometa बनाते हैं which is present on the leaves. So lots of cytometa present on the leaves, through which maximum amount of water lost to the surroundings through a specialized pores जिनको हम cytometal कहते हैं. cytometal यानी जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होता है, lots of water, maximum amount of water एब्जॉर्ब होता है, उसमें जो कि फेवरेट टाइप ऑफ cytometal ट्रांसपिरेशन में जो कि ज्यादा लॉस वाटर करता है आउट ऑफ लेंटिकुलर एंड क्यूटिकुलर, जो कि
कुछ परसेंट लॉस करते हैं, उसमें ज्यादा परसेंट लॉस होता है वो सिटोमेटल ट्रांसपिरेशन थ्रू लॉस होता है। कितना होता है? 90 to 95% वाटर लॉस होता है टू द सराउंडिंग्स। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं इविल। नेसेसरी है ये प्लांट के लिए, बिकॉज इसमें एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। कूलिंग प्रोसेस करता है, मेंटेन टेम्परेचर रखता है प्लांट में। सो ये 90 to 95 लॉस करते हैं, बिकॉज इतना वाटर जरूरत नहीं है प्लांट के लिए। इन द फॉर्म वेपर्स थ्रू जाता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ये भी याद रखना, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ऑकर्स ओनली इन द डे टाइम, यानी ओनली in the sunny days, sunny time. So when there will be when there will be light, यानी sunlight में stomata transpiration occurs, because stomata ये these are specialized pores. So actually ये होते हैं specialized especially होते हैं for gaseous exchange, यानी जिसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। लेकिन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन यहाँ पे भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, दैट इज इट ट्रांसफर वाटर टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये मैक्सिमम वाटर पास करता है आउट ऑफ अदर्स टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। 90 to 95 ट्रांसपिरेशन लॉस करता है। सो इसमें ये स्टोमेटा, ये एक अलग लेक्चर, इसका एक अलग स्लाइड आएगा आपको देखने को, स्टोमेटा टाइप्स है और इसका स्ट्रक्चर किसका। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूँ। स्टोमेटा इस तरह होता है, ये किडनी शेप्ड सेल्स का बना हुआ होता है। इनको कहते हैं इसको हम कहते हैं बीन शेप्ड सेल्स, जो कि प्रेजेंट होता है इन द डाइकॉट्स में। सो ऑन द लीव्स पे होते हैं ये, ऑन द लीफ सरफेस पे, अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे। लेकिन डाइकॉट्स में ज्यादातर होते हैं लोअर सरफेस पे, लेकिन वो भी हैफेजर्डली मैनर, नॉट पैरेलली अरेंज्ड। सो ये होता है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर, और ये होता है, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द लीफ, लेकिन यहाँ पे वो नॉन फंक्शनल होता है क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये क्या करता है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है इसका, जो कि अंडर सनलाइट ये ओपन एंड क्लोज होता है। लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम यहाँ पे जो वाटर होता है ये लीफ पे होता है। सो यहाँ पे जो वाटर होता है वो रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। स्टोमेटा होता है किडनी शेप्ड, ये उनको कहते हैं किडनी शेप्ड सेल्स, बीन शेप्ड सेल्स, लेकिन होता है इन डाइकॉट्स में। So stomata transpiration is nothing, it is the loss of water vapors to their to the surroundings, via specialized pores होते हैं, specialized cells होते हैं। ये भी epidermal cells होते हैं, लेकिन ये specialized cells होते हैं, यानी ये modified हुए हुए modified cells, जिसको हम guard cells कहते हैं। guard cells itself surrounded होते हैं subsidiary cells, one more epidermal layer होता है जिसको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स हैं। सो इसको ये एक स्टोमेटा बनता है। सो इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसको सब्सिडियरी सेल, उस सारा को हम कहते हैं स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स इज नथिंग, इसमें क्या पड़ता है, एक पड़ता है गार्ड सेल्स, प्लस पड़ता है सब्सिडियरी सेल्स, इसको एक्सेसरी सेल्स भी कहते हैं, सब्सिडियरी सेल्स, प्लस पोर है, स्टोमेटल पोर, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। सो ये स्टोमेटा है, इसका एक रफली डायग्राम मैंने आपको बताया है, इसका एक अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है ओनली थ्रू द स्टोमेटा इज नथिंग, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेसेस through which water lost in the form of water vapors to the surroundings. So ये open होता है only in daytime, यानी sunny days में, जब temperature जब when there is light, so there is opening and closing of stomata. So opening and closing of stomata में it transferred water, maximum of water to the surroundings. So ज्यादा water loss करता है ये to the surroundings as compared to जो lenticular है, lenticular करता है 1 to 2% loss to the surroundings. वो उसके बाद जो cuticular transpiration था
क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिक्यूलर करता है था 5% वाटर लॉस टू द सराउंडिंग्स, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ये करता है कौन, सिटोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होती है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होती है थ्रू सिटोमेटल ट्रांसपिरेशन की तरफ से, क्यों, और ये सिटोमेटल होती है ओनली दिन में, रात में नहीं होती है, रात में सिर्फ क्यूटिकुलर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स। सो सिटोमेटा कुछ हर्बियस सिस्टम्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। सिटोमेटा इज नथिंग, ये स्पेशलाइज्ड पोर है। सो दिस वाज द टाइप जो कि प्रीवियस टाइम में रह गया था पेंडिंग। अब हमारा है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो हमारा टॉपिक है टुडे आज। सो हमारा मैं जो डिस्कस करने वाला था दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स है विच इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ाता है और कम करता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि डिवाइड किए गए इनटू 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर्स, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है जिसकी बदौलत से कुछ एजेंसीज है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है सो जिनसे रेट ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। नंबर सेकंड दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो एक्सटर्नल फैक्टर एजेंसीज भी है, फैक्टर्स भी है which impacts the rate of transpiration, which enhance and decrease the rate of transpiration. Let me explain one by one. First of all, we will see about the internal factors. What are the internal factors and what are these effects upon the rate of transpiration? So let me describe leaf size. First one is leaf size. फैक्टर्स, क्योंकि हम ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे थे, आपको पता है ट्रांसपिरेशन बायोलॉजिकल फिनोमेना by which water is absorbed from the soil, from the dynamic body that is soil up to the roots, up to the plant cells, then the plant lost water to the surroundings, plant जिसको हम lost करते हैं, ट्रांसफर करते हैं water to the surroundings, that should be transferred, otherwise it becomes very toxic for the plant. So there is no need of much water for the plant, so there is need of very less water for the plant, so only 5% for the physiological activities. So let me briefly explain internal factors. Leaf size, अगर leaf size ज्यादा होगा so obviously transpiration ज्यादा होगी, क्योंकि अगर leaf का size ज्यादा होगा so broad leaf होगा, so that will be much exposed to the sunlight, so there will be much ट्रांसपिरेशन. लीफ साइज इंक्रीज होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम जैसे कि जिसको कहते हैं हार्टिकल्चर टेक्नीशियन में, सीनियर हार्टिकल्चर टेक्नीशियन में क्या बहुत सारे एग्रीकल्चर लेवल एग्जाम पे होते हैं, सो स्टेट लेवल पे एग्जाम पे जिसमें ये पूछे जाते हैं। जैसे कि लीफ साइज ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन विल बी मोर, इसी तरह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो नंबर ऑफ सिटोमेटा, अगर नंबर ऑफ सिटोमेटा ज्यादा होंगे, पोर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड पोर्स, ऐसे नहीं होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं जो सेल्स के बने होते हैं, मैंने बोला है ये गार्ड सेल्स के बने होते हैं, डाइकॉट्स में मोनोकॉट्स में डम्बेल शेप्ड होता है, वहां पे गार्ड सेल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट सा होता है। सो नंबर ऑफ सिटोमेटा ज्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन विल बी more because stomata के थ्रू ही stomata transpiration occurs. So तीसरा है hairy leaves. हाँ, hairy leaves में क्या होता है, अगर hairy leaves in the sense leaves में कुछ hair like structures होते हैं, अगर hair like structures होंगे internal factors में ये आते हैं तो ट्रांसपिरेशन लेस होगी, क्योंकि hairy leaves ट्रैप करता है वाटर वेपर्स, जिसकी बदौलत से ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि वाटर वेपर अगर बाहर होगा तो डिफ्यूजन पे असर पड़ेगा, जो कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट है वो कम होगा, डिफ्यूज वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स कम निकलेगा बाहर से, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगी। तो इसके बाद है वाटर लेवल विद इन द प्लांट, अगर वाटर कॉलम होगा प्लांट में अच्छी तरह से, जाइलम if xylem will be full with water, there will be much transpiration, because
प्लांट में वाटर ज्यादा है सो प्लांट ज्यादा लॉस करेगा वाटर, अगर प्लांट में वाटर कम होगा तो प्लांट ज्यादा ट्रांसफायर नहीं करेगा। इसके बाद नंबर ऑफ लीव्स, अगर लीव्स ज्यादा होंगे सो इसका मतलब ही ट्रांसपिरेशन विल बी मोर, क्योंकि लीव्स पे ही स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होती है। सो लीव्स थ्रू होती है व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन व्हिच इज मच फेवरेट एंड through which maximum amount of water lost to the surroundings. So number of leaves होंगे ज्यादा। इसके बाद ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन ये भी इंटरनल फैक्टर्स में आता है, अगर डायरेक्शन होगा लीव्स, इसमें अगर देखा जाए तो प्लांट में लीव्स होते हैं एक अपर लेवल अपर जोन पे, मिडिल जोन पे, लोअर जोन। सो अपर जोन होता है विच इज डायरेक्टली विच इज परपेंडिकुलर टू दी सोलर रेडिएशंस होते हैं, क्योंकि अपर जोन होता है मच एक्सपोज टू द सनलाइट। सो अगर वो मच एक्सपोज होगा सनलाइट से सो इसका बदल है वहां पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो वाटर वेपर ज्यादा निकलेंगे एज कम्पेयर टू लोअर जोन में जो वहां पे जो ये मिनिमाइज इफेक्ट होता है, जो हीटिंग इफेक्ट मिनिमाइज होता है, क्योंकि वहां पे लीव्स नॉट मच एक्सपोज टू द सनलाइट, सो वहां पे ट्रांसपिरेशन कम होगी। सो ये है कि अगर लीव्स ओरिएंटेशन होगी डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सनलाइट, अगर पैरेलल होंगे टू द सनलाइट सो ट्रांसपिरेशन विल बी लेस। सो ये है, दिस वाज अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ व्हिच इम्पैक्ट्स अपॉन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो अगर जो बढ़ाते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारे हैं। सो in the next slide we will discuss about much more external factors. What are the external factors which impacts affects the rate of transpiration, how rate of transpiration increase and decreases. So stay tuned for the next video. Thank you, all the best.